हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 50 ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड अलोन। और अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन पहले आग लगाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं यार, क्योंकि रात होने वाली है। आज मैं आज Oh man, it feels so good to be back. Hey everyone, Halloween season is coming, so I've decided to make this shot from Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Well, I've decided to make this shot back in 2022 when the movie was released, and when I first saw this movie in the theaters. It was also my first time theater experience, and after watching this scene, I was like, I have to make this scene. But I knew at that time that it wasn't possible for me right now because that time was different. उस वक्त मैं अपने फ़ोन से विजुअल इफेक्ट वीडियोस बनाता था और मुझे आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो इन सब की ज़रा भी नॉलेज नहीं थी. मेरे पास पीसी नहीं था भाई, सबसे बड़ी बात. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे व्हेन आई हैव दिस नाइस पीसी एंड लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, blender and how can I forget, now I knew little bit of Houdini, which is a software used by these visual effects companies to make this type of epic scenes in our favorite movies. So buckle up because this Halloween I'm gonna turn myself into Zombie Strange. So Halloween is gone guys and I have nothing to show you right now क्योंकि मुझे किसी रीजन की वजह से बाहर जाना पड़ गया था, तो I was in home for a good amount of time. And after that last Godzilla video, I got good amount of audience onto my channel जो कि वीडियो डिमांड कर रही है और मैंने ये वीडियो की अनाउंसमेंट भी कर दी थी. And अब जब कोई डेडलाइन नहीं है, so I'm gonna go full on onto this project and there is no going back now. वैसे Halloween तो चला गया, but जाते जाते let's go. Anyways, so we need these things to make these shot happen. The cave, the smoke particles, the heads and arms popping out of the cave, and the subject, then the background, and some little more things like the fog and snow. So now for the cave, I was kind of confused कि ये wings है या cape है, क्योंकि इसमें दोनों का ही behavior था और दोनों mix करके मेरे लिए बनाना it's quite challenging. So I decided to make it behave as a cape, or you can say as a cloth. So I made this cloth shape in Blender by looking at the reference images from the movie. और वैसे ये ज़्यादा detailed नहीं है क्योंकि my PC can handle this much only. और also मैंने ये assume किया है कि जब हम smoke simulation करेंगे तो वो इसको cover up कर देगी, तो वो इतना ज़्यादा problematic नहीं होना चाहिए. और उसके बाद मैंने इस shape को cloth modifier से cloth properties दे दी physics tab में जाकर, जिससे उसे क्लॉथ का बिहेवियर मिला. और मैंने इसकी सेटिंग्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया टू गेट द डिजायर्ड लुक एंड देन आई केम अप विद अ लुक जो कि मुझे ठीक लग रही थी, तो मैंने उसको बेक कर लिया. देन व्हाट आई डिड इस पहले मैंने क्लॉथ के कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट कर पिन्स के साथ अटैच कर दिया, जो कि बस एक ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स है ब्लेंडर में. एंड देन मैंने उन एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर दिया इन बॉल्स से, और ये बॉल्स एक पाथ को फॉलो कर रही है जिसको मैंने ड्रॉ किया है, जिसकी वजह से हमें ये केप ओपनिंग एनिमेशन मिल गई. एंड देन आई हैव एडेड दीज फ्लोइंग इफेक्ट यूजिंग डिस्प्लेस मॉडिफायर and an object, giving us this.
तो ये थी कहानी हमारे देश की सरकार और वैज्ञानिकों की। पर ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं हमारे देश की सरकार और वैज्ञानिकों के विजन के आगे। मेरी राय में इस फील्ड में हमारा देश अगले 5 सालों में ही बड़े बड़े देशों को पछाड़ दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव। So I've downloaded this skull model from internet and also a skeleton model for hands, and I've deleted all the other parts except the hands. And then I've rigged and animated both of the models using modifiers and keyframes in pose mode. And then I've made multiple variations of this skull model ताकि वो cape में same ना लगे, थोड़ी सी randomness और variation उसमें रहे। Maybe I could sing like him. Anyways, maybe in another universe. ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੋ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਹੋ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂ। सो ये आर्म्स एंड हेड्स को एनिमेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई हिंट नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि इस इफेक्ट को कैसे अचीव करना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, यूट्यूब पे ढूंढा, पर कुछ खास मिला नहीं। एंड देन मैंने इंस्टाग्राम पर एक VFX कम्युनिटी में ये क्वेश्चन पूछा, एंड वहां पर अ पर्सन गेव मी अ हिंट कि ये शायद जियोनोड से बनाया जा सकता है। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट जियोनोड्स, एंड मैन, जियोनोड्स आर क्रेजी। यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट लर्निंग इट। आई विल लिंक सम ट्यूटोरियल्स डाउन बिलो व्हिच हेल्प, बट स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो सारे ट्यूटोरियल्स में वो जियोनोड्स को काफी बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, जिसमें वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको मूव करवा रहे थे या स्कैटर करवा रहे थे। बट मुझे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को स्कैटर करवाना था, जो कि एक अलग ही टास्क था, तो वो मुझे खुद फिगर आउट करना था। सो हियर्स व्हाट आई डिड। तो मुझे पहले ये स्कल्स और हैंड्स को एक्सपोर्ट करना था एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें एनिमेशन पहले से बेक्ड इन रहे, जैसे कि Alembic, GLF और FBX आई गेस। बट वो वर्क नहीं किया क्योंकि व्यू पोर्ट में वो एक्सपोर्ट हो रही थी, और उसके बाद जब मैंने उसको स्कैटर करके प्ले किया तो वहां पर वो मूव नहीं कर रही। एंड देन मैंने रियलाइज किया कि जिस प्रोजेक्ट में मैंने स्कल्स और हैंड्स को एनिमेशन दी थी, उस प्रोजेक्ट में ये इजीली मूव कर रहे, क्योंकि वहां पे उनके साथ आर्मेचर और मैश दोनों। तो इसीलिए मैंने उस स्कल वाले प्रोजेक्ट से अपने एलिमेंट्स को दूसरे प्रोजेक्ट, जो कि मेरा मेन प्रोजेक्ट है, उसमें अपेंड कर आर्मेचर और मैशेस दोनों को उसमें इंपोर्ट कर दिया। एंड देन मैंने सारे आर्मेचर्स और मैशेस को अलग अलग कलेक्शन में डाल दिया। एंड देन आई हैव डुप्लीकेटेड द केप दैट आई हैव मेड एंड रिमूव्ड द स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट। बाद में जब उस पे हेड स्कैटर करने होंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहे थे। एंड देन मैंने उस केप के ऊपर पॉइंट्स को स्कैटर किया। एंड देन मैंने जियोनोड्स में जाकर मैशेस वाली कलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, जिससे वो सारे पॉइंट्स उन मूविंग स्कल्स और हैंड्स के साथ रिप्लेस हो गए थे। एंड देन मैंने उस केप लेयर को हाइड कर दिया जिसपे मैंने हेड्स और ये स्कल्स बनाए थे, ताकि मैं उसके नीचे वाली केप लेयर को रेंडर कर पाऊं जिसमें ज्यादा डिटेल्स थी। सो नाउ एवरीथिंग वाज लुकिंग प्रीटी ग्रेट, एंड नाउ आई एम ऑन टू मेकिंग दीस कॉलर हैंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द हैंड्स बिहाइंड हिम। तो पहले मैं इसमें वही आर्म्स यूज कर रहा था जो मैंने बनाए थे स्केलेटन से, बट वो इसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि वो बहुत पतले से थे। और अगर हम रेफरेंस के लिए मूवी शॉट्स भी देखें तो उसमें ये स्केलेटन वाले आर्म्स नहीं थे, उसमें वो डेड बॉडीज के आर्म्स थे जिसमें फ्लैश और बोन्स दोनों थी। तो मुझे ये आर्म्स पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, तो इसके लिए आई डिसाइडेड टू मेक द आर्म्स अगेन। तो इस बार मैंने नए वाले आर्म्स में स्केलेटन के साथ साथ फ्लैश को भी ऐड किया और उसको एनिमेट किया। एंड उसकी स्किन के टेक्सचर को मैंने ब्लैक पे शिफ्ट कर दिया, और ये फ्लोइंग इफेक्ट देने के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर का यूज किया, जैसा कि मैंने केप के साथ किया था। तो इस सब के बाद हम यहाँ पहुंचे एंड इट्स टाइम फॉर क्लॉथ सिंस। सिंस तो कुछ और यही होता है पॉडकास्ट में, आप लोगों के दिलों को जान लेते हो। उफ, थोड़ा स्विच करें, यहाँ पे भूत की बातें करें। तो आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये कहा था कि यार आप मौत के बारे में सोचते हो, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्यों सोचते हो मौत के बारे में? देखो मौत तो सबकी आनी है, नेट मेरे बारी। मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे बनने के बाद पीछे क्या छोड़ देना हूँ बस।
मैं फिर काम ज़रूर नहीं छोड़ना चाहता ताकि मदे बाद मैं बहुत डर के दिलूँ। ओके इसमें एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि यार मरने के बाद अगर किसी की समय से पहले मौत हो जाती है तो उनकी सोल को मोक्ष नहीं मिलता और फिर उनकी सोल इस यूनिवर्स में It's getting cold here. So, मैंने अपने केप को एज एन एलिम्बिक फाइल एक्सपोर्ट कर लिया जिससे उसकी क्लॉथ सिमुलेशन उसमें बेक्ड इन हो गई है। नाउ लेट्स फायर अप Houdini. So the plan is कि मैं अपने केप को इंपोर्ट कर उसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स स्कैटर करवा लूंगा एंड देन उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हम उन पॉइंट्स में से स्मोक को सिमुलेट करवाएंगे। और बस अभी अपनी फाइल इंपोर्ट करी थी कि प्रॉब्लम्स चालू। इसमें कोई काम आराम से हो सकता है क्या? नहीं यार। तो अभी इसमें वो स्कैटर्ड पॉइंट्स शो नहीं हो रहे थे व्हिच आई डोंट नो व्हाई। सो आई लुक्ड अप ऑन इंटरनेट, काफी ढूंढा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सडनली आई फाउंड दिस वीडियो एंड बूम इट वर्क। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता लगा कि एलिम्बिक फाइल पे हम डायरेक्टली पॉइंट स्कैटर नहीं करवा सकते, हमको उसको सिमुलेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा और वो करने के लिए सबसे पहले अपनी एलिम्बिक फाइल Houdini में ऐड करनी होगी एंड टू डू दैट ऐड एलिम्बिक फाइल नोड और उसमें अपने एलिम्बिक फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लो एंड देन ऐड ब्लास्ट नोड एंड सिलेक्ट योर केप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड देन यू हैव टू ऐड अनपैक नोड, देन कन्वर्ट नोड, देन टाइम शिफ्ट नोड एंड देन अ null ऑब्जेक्ट एज आउटपुट, जिसमें से उस केप को हम व्यू करेंगे और वो आगे उसी को प्रोसेस करेगा एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आफ्टर दैट आई वर्कड अकॉर्डिंग टू द प्लान। मैंने केप के ऊपर पॉइंट्स को स्कैटर करा एंड देन उन पॉइंट्स से मैंने स्मोक जनरेट करवा ली, बट इट वाज नॉट लुकिंग लाइक दैट। मतलब वो रेफरेंस वाले से मैच नहीं कर रहा था। तो रेफरेंस फुटेज को और ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद आई फाउंड आउट कि हमको स्मोक सिमुलेशन नहीं करना है, हमको सम काइंड ऑफ पार्टिकल सिमुलेशन करना है। एंड व्हाई सम काइंड ऑफ पार्टिकल सिमुलेशन यू मे आस्क? वेल बिकॉज़ इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे वेटा डिजिटल की वेबसाइट पर एक आर्टिकल मिला। वेटा डिजिटल वही VFX स्टूडियो है जिसने मूवी के अंदर इस सीन पर काम किया था और इस सीन को बनाया था। उन लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के मिक्सचर को यूज करके सम काइंड ऑफ यूनिक कस्टम विजुअल्स बनाए थे जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टी थी। इसी वजह से अगर तुम ठीक से नोटिस करोगे तो इस केप के अंदर तीनों मैटर्स के बिहेवियर्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब वेल वहां तो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो लोग ये सब कर सकते हैं, बट मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे ज्यादा सिमिलर लुक पार्टिकल सिमुलेशन से ही बन रही है जो कि गैसियस बिहेवियर दिखा रहा है बट स्टिल उसमें लुक और टेक्सचर वो थोड़ा लिक्विड वाला है। दैट्स गोना डू द जॉब फॉर अस। और लकीली Houdini में वो पार्टिकल सिमुलेशन बनाने के लिए पहले हमें स्मोक सिमुलेट करनी पड़ती है। सो हियर्स व्हाट आई डिड। जो मैंने पहले से स्मोक सिमुलेशन बना रखी थी मैंने उसी के आगे पार्टिकल सिमुलेशन के लिए एक सिस्टम तैयार किया Houdini में, और जो वो स्मोक सिमुलेट की थी हमने उसी में हमने पार्टिकल्स को सिमुलेट करवा दिया जिससे हमारे केप के अराउंड कुछ ऐसे पार्टिकल्स बन गए। It's getting cold here. Let me get my jacket though. Let me put my jacket on. So I'm in the final round of Mr. Cheese Games, which is taking place on Mr. Cheese private island. There are 50 contestants hiding on this island for their lifetime opportunity, and I'm currently hiding in this basement. Rules are simple. The last person to stay hidden will win the cash prize of $100 million. And guess who it's gonna be? And now I'm looking to change my place to hide somewhere else because I think someone is out there. So let's go. Let me show you. Oh shit! No. I think they've seen this. Oh no! Oh shit! Oh shit! They've seen us. Oh, we have to go. Shooting the subject plate was very difficult as I really need to match the lighting of the shot, and also I'm using this blue screen to key out my subject in post, and इसीलिए मैं इसे daylight में shoot कर रहा हूँ to get better quality, और उसके साथ साथ मैंने एक bulb का use किया to get some harsh shadows onto the subject, and everything was looking very good until the post processing. You see, I'm using my phone to record everything, and उसका sensor, because of that blue screen और मेरी black jacket को separate करना काफी ज्यादा मुश्किल था, और उसके लिए मुझे बहुत सारी रोडोस्कोपिंग करनी पड़ रही थी, especially for the hands. यहाँ पे रोडोस्कोपिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ। मैंने अपने पिछले स्ट्रेंजर थिंग वाले वीडियो से सीख लिया है कि भाई रोडोस्कोपिंग में ज्यादा मथा नहीं मारना, वो मेरे बस की बात नहीं। सो वी रीशॉट एवरीथिंग दिस टाइम विद ग्रीन स्क्रीन, नॉट यूजिंग द ब्लू स्क्रीन, और इस बार मुझे हाथों को रोडोस्कोप ना करना पड़े उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर के कुछ चार्ट पेपर्स का यूज करके अपने हैंड्स के लिए ग्रीन स्क्रीन टाइप कुछ बना लिया, क्योंकि माई हैंड्स आर गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन जहां पर रोडोस्कोपिंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। एंड दिस टाइम सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड
बट वो फील नहीं आ रही बिकॉज आई रियलाइज कि मैं अपने हाथों को अपनी बॉडी से काफी ज्यादा पीछे कर रहा था ताकि वो चार्ट पेपर्स क्लियरली विजिबल रहे जिससे मैं हैंड्स को इजीली की आउट कर पाऊं। उसी की वजह से मेरा पोज इफेक्ट हो रहा था जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं लग रहा था। सो वी शॉट अगेन, ट्राइड डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पोजेस एंड दिस टाइम वी फाइनली गॉट समथिंग टू वर्क विद, बट स्टिल इट्स नॉट सुपर कन्विंसिंग इन माय ओपिनियन। सो मूविंग फॉरवर्ड मुझे याद आया कि मैं अपने फोन को रोटेट कर वर्टिकली भी सीन को शूट कर सकता हूं, बस मुझे अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा एंड दैट विल डू द जॉब। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड वी शॉट एवरीथिंग अगेन। और इस बार मैंने अपने प्लेटफॉर्म को भी और थोड़ा सा ऊंचा बना दिया और फोन को वर्टिकली शूट करके मुझे वो थोड़ा लो एंगल शॉट मिल गया एंड इट टर्न्ड आउट रियली नाइस। लाइटिंग, हाइट, कैमरा एंगल, एवरीथिंग वाज नियर परफेक्ट आई वुड से, बट स्टिल मुझे कंपोस्टिंग में थोड़ी एक्स्ट्रा रोटोस्कोपिंग और मास्किंग करनी पड़ी, बट आई गेस इतना तो चलाना पड़ेगा अगर रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। So now I have exported everything from Blender and Houdini in EXR file sequence and brought it into After Effects and combined everything together, and at this stage I could see that it's looking really nice and it's gonna turn out really well. But still यहाँ पर एक problem है, skulls काफी fast flicker कर रहे हैं, तो उसको fix करने के लिए I went back into Blender, tweaked some settings, and after I got the desired results I exported again and brought everything in After Effects and did the whole process again. And now this is interesting, that's why I have exported everything in EXR file sequence because it contained depth maps of the images that we created in Houdini and Blender. Using those depth map, I made myself hide inside the cape and came out as well. Then I have added shadows of the hands on my shoulder, combined the cape and hand with the particle simulation, then added some fog and snow particles in the background, foreground to give the scene some depth. So now for the background, वो तो हम ब्लेंडर में इजीली सीन क्रिएट कर सकते हैं या फिर फोटोशॉप से मैट पेंटिंग करके उसको इजीली बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं। Oh, it's getting more colder now. Oh, yeah. So, after the background and everything, I've tried to give my 100% in every department of this video. Okay, not for the background, but scripting, writing, costume, lighting, shooting, modeling, simulation, compositing. And now, I want you to tell me in the comments that what do you think of this video. So, with that said, you can enjoy the final reveal. Okay, wait. Okay, so I've seen the footage and the skulls and arms are not moving. They're just static. I mean, we're just this close and I just don't know how to fix this. Come on. Okay, just please give me some second. Okay, I've seen millions of possibilities and we fixed it in one. And here's what we did. So I went back into Blender, selected the armature, went into pose mode, and then baked the animation. And then I re-exported everything from Blender, brought it back in After Effects, and then re-exported from After Effects. And now you may enjoy the I should call the doctor. Hey, how are you doing? Hello, doctor. Are you okay? Yeah, I want to talk about that. I'm seeing dead bodies in my dreams. Yeah. Dreams are the reality of your alternative universe. What? Hey, please, let me go. Please, let me go. Please, leave me. Please, leave me. Please. I have killed millions of my variants, but none of them was a coward like you. But why are you doing this? Comment part 2 for that.